Dear students, now we are going to start lecture number 14. मित्रों, मैंने जो अगले सेशन में आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बताया था कि यूनियन ऑफ सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, जो भी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर्स 2-3 लेक्चर में हमने पढ़ा है, इनके बारे में आपको एक रिवीजन करना चाहिए। तो मैं एक सम के हिसाब से लेता हूँ, उस हिसाब से कि जो आप ये समझ सके कि कैसे ये हम फाइंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ x is equal to a, b, c, d, there are 4 elements in x, and y is equal to f, b, d and g. 4 elements in y. Now find x minus y, y minus x, third one x union y, fourth one x intersection y. ये टेक्स्ट बुक में सम है, एग्जाम्पल नंबर 10। तो एक डिफरेंस ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो 3 डेफिनेशन है, एक ही समय कवर कर सकते हैं। तो पहले तो हाउ कैन वी फाइंड x माइनस वाई? x माइनस वाई, x is equal to a, b, c, d minus y is equal to f, b, d and g. The difference of set x minus y is the set of all those elements which are in x and not in y. मतलब जो x में है वही एलिमेंट हम x माइनस वाई में ले सकते हैं, सिर्फ x में, ओनली इन x, नॉट इन बोथ। जो भी एलिमेंट x में है, सिर्फ x में है, वही कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं ये कंसीडर कर सकता हूं क्योंकि एक मेंबर a does not belongs to y, so a, b is in both the sets x and y, so b cannot be considered. C is only in x, not in y, so c is considered. Write C. D is in both the set, so d is in x and as well as also in y, so d cannot be considered. So you can see only A and C are the members which belongs to x minus y. Take those elements which are only in x, not in y. Simple. Second, y minus x. What is y? A, B, D, G. X, A, B, C, D. Now take all those elements which are only in y, not in x. तो हम ले सकते हैं, यहाँ पर F ले सकते हैं क्योंकि F belongs to y, not belongs to x. F, G is also considered. तो B and D तो नहीं आएंगे क्योंकि B and D जो 2 मेंबर है, और दोनों मेंबर दोनों सेट में है। In this way we can find y minus x, and you can see x minus y and y minus x are always not equal. So x minus y and y minus x are called disjoint sets. Third one, x intersection y. इंटरसेक्शन में क्या आता है? all
x intersection y is the set of all those elements which are in x or in y or in both. So you can take single time each and every element a, b, c, d, f, b and d वो हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं g. So you can see set x has 4 elements and set y has 4 elements. But in x intersection x union y has 6 elements. Why? Because there are 2 elements are common. That is why the number of elements of x union y is only 6. Now find x intersection y. X intersection y is the set of all those elements which are in x and in y. So in both the sets, there are 2 elements which are common in both the sets. First one is b. Second one is d. There are common elements b and d. So we can write b and d in A intersection y. Next sum. थोड़ा ये डिस्क्रिप्शन वाला सम है. If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब R है, उनमें इंटीजर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं. मतलब सेट R is equal to set of real numbers. Real numbers मतलब set of rational numbers plus irrational numbers. जब rational numbers और irrational numbers दोनों को मिलाकर हम एक नया सेट मतलब R बना सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हैं. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस इररेशनल सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स. दिस इज R. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Q? Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. Now I want to R minus Q. That is very simple. You can see set of rational numbers plus set of irrational numbers. It is called R. अगर मैं R में से Q सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर में उठा लेता हूं, तब क्या बचता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. एंड वही हमारा आंसर है, वही हमारा जवाब है. Now, new topic, symmetric difference set.
difference set. What is symmetric difference set? Let A and B are two sets. The symmetric difference set of A and B is the set of all those elements which are either in A, which are either in set A or in set B, either in set A or in set B, but not in both. It is denoted by A triangle B or A delta B. So A triangle B is equal to X such that X belongs to A union B and X does not belong to A intersection B. और मैं इस तरह ए ट्रायंगल बी डिफाइन कर सकता हूं. दूसरी तरीके है बताने के लिए. x belongs to a minus b और x belongs to b minus. यहाँ पे जो वर्डिंग का यूज करते हैं एंड और वो बहुत ही महत्व वाला है. अगर ये वर्ड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है. सो ए द फॉर्मूला इज ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए भी लिख सकते हैं. कोई भी तरीके से हम ए ट्रायंगल बी दोनों तरीके में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं. For example, suppose A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. B is equal to 2, 4, 8, 9 and 10. Find A triangle B. अगर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा और दोनों का डिफरेंस ऑफ साइड मतलब कि दोनों का ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस ऑफ साइड फाइंड करना पड़ेगा. तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 नहीं ले सकते, रिपीट हो जाते हैं. A intersection B. How many elements? Which elements are common in both the sets? You can see 2, 4. 2 elements are common in both the sets. So 2 and 4. दूसरे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. So intersection B is only 2 and 4. Now we want to find A triangle B. So A union B minus A intersection B. A union B में से A intersection B हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो जो A union B में जो भी है वो हम ले सकते हैं, लेकिन A intersection B का जो 2 and 4 है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 1, 3, 5, 6, 8, 9 and 10.
तो जो एलिमेंट हम यहाँ पसंद करते हैं, जो एलिमेंट्स हम लेते हैं, विच आर आइदर इन ए और आइदर इन बी बट नॉट इन बोथ. Venn diagram. This is A and this is B. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं जो एलिमेंट पसंद करना चाहता हूं वो सिर्फ ए में होना चाहिए या फिर सिर्फ बी में होना चाहिए. दोनों में एलिमेंट नहीं होना चाहिए. जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो मैं नहीं ले सकता. तो मैं यहाँ पे जो शेडिंग करने वाला हूँ वो सिर्फ ए में शेडिंग करूंगा, क्योंकि सिर्फ ए में मतलब कि एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए इट विल बी टेकन. सिर्फ ए में जो भी एलिमेंट आएगा वही मैं ले सकता हूँ. सिर्फ बी में जो भी एलिमेंट आएगा वो भी ले सकता हूं. तो सिर्फ बी में मैं यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं बीच वाला जो एरिया है वो पोर्शन है वो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि जो एलिमेंट्स दोनों सेट में है वो हम ए ट्राइंगल बी में नहीं ले सकते. तो इसी तरह ये मतलब ये जो वेन डायग्राम से फिगर हमने बनाया है वो आप समझ सकते हैं कि दोनों में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो हम छोड़ देते हैं, वो ए ट्रायंगल बी में नहीं आ सकते. द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए और ओनली इन बी बट नॉट इन